thir tu te chi bei u le jin chuak arun zal lam tuang part 1 a khan je tom ni zan in khom ban thleng kan ron tilanga ti chuan hei part 2 vo in ni som pathum in rin ni a kan ron chhun zom le don ania ti chuan helai biak in kan ma biak in om hi kimin biak in vo in nia hon tur chu alo ni ta a ti chuan tuna hian dar som pakhat bor vel ani atuna tangre lo te hian Reverend Larwat Fela General Mission Secretary in Pathian ne na hon na le hlan na anei don ani ti chuan voinia hian field conference ni pa abiak in hon na program nei tur ani a voin biak ero hi chu jingkar lama ro rel in khom ten lo nei tu a voinia hian biak in hon program hi darsom pakhat bor vela hian kan trananga ti chuan chumi zoa ruai kan thenga chu voin kan hun man dan tur program tlang pui chu ani tuna kan mu so biak in hlui ani a ti chuan helai hian ei biak in thar an lo sata a ei mun hi a rem nuam khop mai atlang bok anga hian a omani ti chuan hei ko member te pon local khom trai to a ta hian bial tu pastor le how to pa in field pastor le how to pa in engemon saidun vel me kadi ti chuan helai tuna pandal kulai lo lang khu ni jana ga in khom na an pandal in khom pui field conference an man na khania cute khop mai chuan hun ma hi hei tuna kan huang hian tu chu ma hen drone kan keng lo tlat maya hei tlai mun hi United Pentecostal Church of Arunachal Pradesh Kimin Durpa their headquarters Aizawl Mizoram ti ani a ti chuan helama hian kan ho tu pa le bial tu pastor ten oma biak in zau zong vel te hi shet them li sari li sari mo li sari adung li sari awang som pasari ani eng za bor vel nge in senang vai chuan nuai li le ti vel khan senga nuai li le ti vel in senga na report khan tianga chiang mai tu la kan nga chuarang chuan general trade eng za bor vel nge general tang chuan nuai thum general tang in nuai thum in donga kan upa mon te tang in nuai ni le general tang in nuai ka ti chuan avain nuai thum ta chuan aba ka tan puina tan don te ne khan mo nuai li chu ti chuan helai mun ma hi ko ran ram he mani mun ma chi mi he tilai tlang bok chin jong hi ni mei ti na mi tuna kan huang huan bok atang phang tilai bok atang phan kan bu atang phan la ron mi chho vela chon thi lama thi thi ahmin chho do lai ko chho chin lai vel kha ani ta nga sala ma tong ko o ma liam tha mo so da so biak in hui Sunday school hall ada bukan bang to mai neng sono biak in hui so om le ta selai theng so ni ya chon so mi biak in liam tha kha khu ta han tong pui an kha jin ta mo che che tai local te hi hay kan an sai do to bin singa kai phang bial mission suai tu te neng kan in dia mo wa ke man du ni chu an ni hian wa ke hi ai abang hi plaster lo la nia ama kan plaster to a asir anung le salam sir chu plaster lo la ni ta ni chu wa ke hi ron nei ta 7 thadon pe o te kan ti a chuan helai te po hi du la hei te min a zol lo do ni helai hi mo chu han la kwal bel sin hai han helai han du le mau te po khu kan mau ni am pan dal ni khu o mau khat yen da ila rem mi le khat yen chuan kan ban kan phun mau ban chuan le kha chung zol tai la mo chuan la soi te helai hin te kal te hin dom do mai kai phang bel te chuan te po I just te po ni ta se min an siam thak sak se ko la kon awa thadon ve hulai thleng vel khatro hulai vel thang ta khu pan dal na lai po kun ta te kai phang bel in wok ke min on nei sak se awa thadon ve ti te kan ha soi ani pu mo te chung kwa han chang le do hlek sela hemi plaster na tu te hi min han pele thei se kan van lom don em kan ti ani seng noi ni an ni nan tum to a chuan
cheng noi khat department ni tuma noi thum kan pe a chon noi le chuang an seng an mani pon chu noi khat chuang an seng to ting ani ta mo le men kan ho to pa hian chang le do sela han mi aplas ta na to himin an ti sak le sela a fa lom don ve o kan ti di chu chuan kai fang bial mission department te wa kem nin ron thok ta se a fa chadon ve tro गाते रहेंगे जब गाना खत्म होगा हमारे साथ में अंतिम अंत का जो प्रार्थना है वो कर लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा। चलिए हम यीशु मसीह के नाम से हमारे और साथ हमारे जनरल मिशन सेक्रेटरी को यीशु मसीह के नाम से मैं समय देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और प्रभु ने सहायता किया, प्रभु का मदद, प्रभु का आशीष हमें मिला। आज बहुत ही अच्छा समय हमें मिला है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे जो चर्च बिल्डिंग है, हमारे एल्डर लथा मोना नाम थे जो हमारे करंट जनरल मिशन चेयरमैन भी है, उनके परिवार के द्वारा बहुत सारा योगदान मिला है, सहायता मिला है और हमारे जनरल मिशन से भी हमें सहायता और मदद मिला है। तो यहाँ के जो फील्ड के हमारे लीडर्स हैं, हमारे पास्टर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे एवेंजलिस्ट और यहाँ के लोकल चर्च किमिन के लोकल चर्च के हमारे पास्टर, हमारे एल्डर्स और हमारे जितने भी एलएडी हो, पीवाईडी हो, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया और आज इस भवन को हम क्या है देख पाए हैं। और इन सब कार्य, इन सब कामों को पूरा करने के लिए अगर परमेश्वर का सहायता हमें नहीं मिलता, परमेश्वर का आशीष नहीं मिलता, शायद ये बन नहीं पाता। तो इसीलिए आज तहे दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सबका मेहनत के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ मिजोरम यूपीसी के जनरल मिशन डिपार्टमेंट के द्वारा से यहाँ आया हूँ और आज चर्च का इनॉग्रेशन प्रोग्राम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ही क्या है कि एक अरुणाचल फील्ड के लिए बहुत ही बड़ा आशीष है और इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि सेपा में भी जो हमारी कलीसिया हैं उनके लिए भी एक भवन बने और उसी प्रकार से हमारे जो पेंटिकोस्टल चर्च, हमारे यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ मिजोरम जो है अरुणाचल में और भी ज्यादा काम करे। और 13 सितंबर 2025 को यहाँ किमिन चर्च का इनॉग्रेशन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रभु को दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक छोटा सा हम लोग वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ने के बाद में इस रिबॉन को काट कर हम लोग गीत गाते हुए हम प्रवेश करेंगे प्रभु के भवन में और गीत को खत्म करने के बाद में मैं प्रार्थना करूंगा और उसी प्रार्थना के साथ में हम जो इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम जो है छोटा सा रखेंगे। उसके बाद में हमारे फील्ड के जो पास्टर हैं और आज के जो हमारे चेयरमैन हैं उनके हाथों में समय भी रख लूंगा और उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वचन हम पढ़ेंगे और जो गीत हम गाएंगे, कौन सा गीत कोई सुना है? गीत है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। उस गीत को गाकर हम प्रभु के भवन में प्रवेश करेंगे। तो चलो भजन संगीता चैप्टर 135 वर्स 1 से लेकर 3 उसको हम पढ़ के पढ़ेंगे और सुनेंगे। भजन संगीता साम्स नंबर 135 वर्स 1 से लेकर 3। वर्स 1 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, है यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो। और 2 में लिखा है, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। और 3 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वो मनोहर है। आमीन, हालेलुया। तो कितना अच्छा वचन है ना? यहोवा की, परमेश्वर की स्तुति करो, उसके गुणगान करो, उसकी प्रशंसा करो क्योंकि वो महान है। उसके भवन के सामने खड़े हुए लोग उनकी जय जयकार करो, उनकी प्रशंसा करो। परमेश्वर अच्छा है। तो आज
भवन हम किस लिए बनाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की जय जयकार करें, मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो भवन है एक प्रार्थना का स्थान भी है। तो हम भवन में आकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने दुख हो या अपने चिंता हो, हम उसको है कि हमें अपने आप को पवित्र करना होता है। भवन जो है एक पवित्र स्थान है। तो इसलिए आज हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने तन को, अपने शरीर को भी शुद्ध करेंगे और परमेश्वर की गुणगान करेंगे। यहाँ आकर हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके वचनों को सुनेंगे ताकि हम तृप्त हो सके। तो आज यहाँ किमिन कलीसिया के जो नया परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, अपने दुख और तकलीफों को हम परमेश्वर के पास में ला सके, उसके वचनों को हम सुन सके। मैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पिता को गाता हूं। इस द्वार में जो भी प्रवेश करता है, प्रभु उसकी सहायता करे, प्रभु उसकी मदद करे और यहाँ पे जो भी आता है उनके मनोकामनाएं पूरा हो सके, उनकी इच्छा पूरा हो सके। प्रभु इस भवन को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह इस भवन को तैयार करने में जो तेरा आशीष मिला, जो तेरा सहारा मिला, प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। इस भवन को प्रभु यीशु मसीह, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु बेशक इंसानों ने बनाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा और तेरे सामर्थ के साथ में प्रभु इसे बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह आज आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह इस भवन में रहे और प्रभु यीशु मसीह इस भवन में जो भी आते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो दुख और तकलीफ लेकर आए, बीमारी और परेशानी लेकर आए, प्रभु वो खुशियों के साथ प्रभु यीशु इस भवन से लौट सके, आपके आशीष पाकर लौट सके। प्रभु यीशु मसीह भवन को प्रभु तेरे हाथों में हम अर्पण करते हैं, तेरे हाथों में हम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तूने हमसे प्यार किया, तूने हमें प्रभु यीशु बचाया, प्रभु तूने अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह तेरा प्यार है महान, प्रभु यीशु तेरा प्यार है जहां प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह इन भवन को प्रभु तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, करते हैं, प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, चिंता नहीं करो, ईश्वर तो साथ है, वो
हम जानते हैं कि तू हमें लेने आएगा प्रभु। जब तक तू नहीं आता प्रभु, हम इकट्ठा होकर इस भवन में प्रभु तेरी महिमा करते रहे, तेरी स्तुति करते रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। और प्रभु यीशु पिता, और तू जब आएगा प्रभु, इंसान का बनाया हुआ नहीं, प्रभु यीशु मसीह तेरा बनाया हुआ, तेरा तैयार किया हुआ उस राज्य में हम जाएंगे जहाँ पे आनंद ही आनंद होगा, जहाँ पे खुशी और खुशी रहेगा प्रभु। है प्रभु यीशु मसीह, उस राज्य में जाने के लिए आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी में तू सहायता कर, तू मदद कर, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। इस विनती और प्रार्थना को आपके हाथों में रखते हुए, इस भवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए, यह विनती और प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें नया भवन दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए I
नहीं बोले, उसका मर्जी है। हर चीज को यीशु मसीह के नाम से सौंपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। अटोरतो अबू यीशु। Praise the Lord. चलो हम सब बैठेंगे। आज प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष हमें मिला है और आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हो पाए हैं, और मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भैया लिंचो, आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने हमें बुलाया, निमंत्रित किए और प्रभु की महिमा प्रशंसा करने के लिए कॉन्फ्रेंस और यहाँ चर्च का डेडिकेशन करने के लिए, और दूसरा भी काम है जो सेपा में हमारे कलीसिया भवन के लिए जगह ज़मीन देखना है, उस विषय में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इस बार एक ही बार में क्या है, 3 काम करने के लिए हम लोग आए हैं। तो इसलिए प्रभु का सहायता से, प्रभु का अनुग्रह से हम लोग यहाँ पे सुरक्षित पहुँचे हैं। तो वचन की ओर बढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हम 3 काम करने के लिए आए हैं। पहला तो हो गया कि सेपा में ज़मीन हमें देखना है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी है, और तीसरी जो है चर्च का उद्घाटन भी है ना। तो ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिश या जो इच्छा था वो पूरा हो गया है। ईटानगर में या अरुणाचल में कहूँ कि मैं कितना बार आया हूँ मुझे नहीं पता है, काफ़ी बार आ चुका हूँ। तो जब भी आता हूँ कोई हमारे लीडर्स को लेकर आता हूँ या कोई किसी को लेकर आता था। तो मैं ऐसे ही एक बार तो शायद कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का कॉन्फ्रेंस ईटानगर सेंट की व्यू में हुआ था, है ना। मैं पास्टर अंडू से ऐसे ही मजाक में बोला था कि मैं इतना बार आ चुका हूँ। तो मैंने ऐसे बोला था कि ट्रेडिशनल कोड जो है मुझे एक बार भी नहीं मिला है, ऐसा मैंने मजाक बोला था, मजाक में किया था। जो मैं लीडर्स लोग को लेकर आता हूं उनको तो मिलता है, लेकिन आज है ना प्रभु की दया से 2 मिल गया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा पहनेगा कौन सा नहीं पहनेगा वो तो मुझे अभी नहीं मालूम है। जो ना 2 नंबर में मिला है वो पहन लिया हूं, और साथ में है ना ये मफलर भी मिला है। तो 3 काम के लिए आए हैं और 3 भेंट मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आशीष है कि मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। दोबारा मैं कह रहा हूँ किस वजह से, क्योंकि 2015 में वहाँ जो पुराना चर्च का उद्घाटन हुआ था तब भी मैं आया था। तब भी मैं आया था। तो उस टाइम मैं अपना मिशन चेयरमैन जो है रेवरेंड छुंग लोमा उसके साथ में मैं आया था, और उसका साथ में हमारा एक एल्डर भी था। तो हम लोग 3 लोग आए थे, मतलब मिजोरम से 2 जन थे, और मैं उनका क्या है सफ़र में सहायता करने के लिए गुवाहाटी से आया था। तो उस टाइम यहाँ चर्च का उद्घाटन में आया था, और आज फिर से चर्च के उद्घाटन में आया हूँ। तो इस प्रकार से मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा फर्क है। उस टाइम मैं किसी को लेकर आया था, है ना। इस टाइम में जो है मैं खुद अधिकारी बनकर आया। हालेलुया। प्रोग्रेस अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने विश्वास में होना बहुत जरूरी है। एक जगह में बना रहेंगे या एक जगह में ठहरे रहेंगे तो कैसा होगा। तो उस समय में शायद पास्टर टोमेन नजरी था, उनके द्वारा चर्च बना था, लेकिन उसका देहांत हो गया। फिर उसका बाद में मरक्यू मम्मा यहाँ पर आया, लेकिन उस टाइम में शायद चर्च ओपनिंग के टाइम में कोई था कि नहीं था मुझे इतना याद नहीं है। पास्टर एंड्रू के साथ वहाँ किमिन्स सेंट की व्यू से आए। तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ चर्च का उद्घाटन
हो रहा है ना। आज से 15 साल के बाद में या शायद 20 साल के बाद हो सकता है और भी नया चर्च वो नीचे में जगह है ना, वहाँ पे बन सकता है। इससे भी बड़ा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। जब भी कोई आए तो कोई समस्या का वजह से या कोई मुसीबत के वजह से नहीं आकर उसका जो कारण जो है अच्छा खुशी का कारण होना जरूरी है। हालेलुया। कोई हमारे पास्टर और हमारे एल्डर के बीच में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया एलईडी के बीच में, है ना, वहां पे सुलह करने के लिए जाना है, वहां पे है ना वकील बनकर जाना है, जज बनकर जाना है, तो मन नहीं होगा जाने के लिए। लेकिन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो उस प्रकार से होने से क्या होगा कि आने का बहुत ही मन होता है, बहुत ही इच्छा होता है। जैसे कि इस बार हम आए हैं, बहुत ही मन था, बहुत ही इच्छा था कि अरुणाचल में फिर से कब जाऊंगा, अरुणाचल के जो हमारे विश्वासी हैं उनसे कब मिलेंगे। मिजोरम में तो हम मिला, पिछले साल में भी वहां मंजा में हम मिले थे, लेकिन यहाँ अरुणाचल में ही, है ना, अपने फील्ड में ही, अपनी कलिसिया में मिलना, उसका मजा कुछ अलग ही होता है। तो इसलिए आज मैं तहे दिल से हमारे पास्टर को, हमारे फील्ड के पास्टर हो, हमारे लोकल पास्टर हो, हमारे फील्ड के अधिकारी हो, लोकल के अधिकारी हो, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस भवन को बनाने के विषय में जो बातें हैं, रिपोर्ट्स हैं, हमने सुन चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं दोहराऊंगा। फिर से हमारे चेयरमैन के द्वारा जो यहाँ पे योगदान दिया गया है, हमारे मिशंस डिपार्टमेंट के लिए जो योगदान दिया गया है, उसके लिए मैं मिशंस डिपार्टमेंट हो या हमारे चेयरमैन उपमोहंतिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परंतु उपमोहंतिया के द्वारा हो या मिशंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो सहायता राशि मिला है ना, फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिला है, उससे कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज यहाँ पे हम लोग तो है ना खाली अपना बाइबल लेकर आए हैं, तब भी यहाँ पहुँचने में आप लोगों का है ना पसीना कितना बहा होगा। मेरा तो रुमाल जो है ना पूरा भीग गया है कि नहीं। तो सोचो, एसीसी ब्लॉक उठाकर लेकर आए होंगे, सीमेंट का बैग उठाकर लेकर आए होंगे, टिम्बर को लेकर आए होंगे, है ना, जो सैंड है, बालू है, उसको लेकर आए होंगे, तो कितना पसीना बहा होगा। हालेलुया। उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके जो पसीना बहा है, पसीना तो छोड़ो, किसी को चोट भी लगा होगा, किसी का खून भी बहा होगा, लेकिन वो व्यर्थ नहीं होने वाला है। प्रभु हर एक चीज का हिसाब रखता है और वो रखेगा। प्रभु हर एक चीज को देखता है और वो उसका फल हमें देगा। तो इसलिए आज चेयरमैन का हो या डिपार्टमेंट का हो योगदान, उससे भी बड़ा फील्ड का योगदान हो, यहाँ के लोकल के कलीसिया के योगदान हो, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए जो अरुणाचल फील्ड के हमारे अधिकारी है, यहाँ के लोकल के अधिकारी और बिलीवर जितने भी विश्वासी हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मेहनत रंग लाया है और आपके मेहनत के वजह से आज ये भवन बना है। आपको सबको दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय हो चुका है, 1 बजने को है, शायद किसी को भूख भी लग रहा होगा, है ना, तो खाने का टाइम भी हो रहा है। तो इसलिए वचन की ओर बढ़ेंगे और आज के जो हमारे विषय होंगे वो होगा मेहनत। क्या होगा? मेहनत। तो उस विषय में प्रभु के एक वचन हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। नीति वचन उसके 21वां अध्याय और उसके 5 पद को हम एक बार पढ़ेंगे। नीति वचन Proverbs chapter 21
नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे पास्टर मामा जो है वो हिंदी में पढ़ के सुना दे, बैठे बैठे पढ़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नीति वचन Proverbs chapter 21 verse 5। Proverbs chapter 21 verse 5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल गति होती है। हाँ, फिर से एक बार दोबारा। Proverbs chapter 21 verse 5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल गति होती है। आमीन। तो कामकाजी मतलब कि मेहनत करने वाला। तो आज हमारा विषय जो होने वाला है मेहनत के विषय में रहने वाला है। तो जैसे आज हमने रिपोर्ट सुना, हमारे यहाँ के लोकल ट्रेजरी के द्वारा से रिपोर्ट सुना, और आप सब जानते हो कि यहाँ पे इतना चढ़ाई क्यों है, उस विषय में मेरे मन में क्या है, एक वचन जो भजन संहिता में लिखा है। भजन संहिता में लिखा है, हमारे मिजो भाषा में उसको हम बोलेंगे कि छौला, मतलब चढ़ाई के गीत, ऐसा लिखा गया है। हाँ, भजन संहिता 130 एक बार खोल के देखेंगे। भजन संहिता उसके 130, हाँ वहां से हम देखते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे चढ़ाई के गीत। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो 15 शायद, हाँ 15 है जो चढ़ाई के गीत कहा जाता है। यहाँ पे भजन संहिता में आपको मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ, भजन संहिता 123 से लेकर हम नहीं 120 से लेकर हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 120। मामा उसके ऊपर में क्या लिखा है? 120 के ऊपर में क्या लिखा है? थोड़ा पढ़ के सुनिए, आप लोग भी देखिएगा क्या लिखा है वहां पे। भजन संहिता 120 ऊपर में छोटे अक्षर में लिखा है, एकदम छोटे अक्षर में लिखा है। ये देखो, ये इसको पढ़ के एक बार सुना दो। क्या लिखा है? छोटा अक्षर में लिखा है ना, ध्यान से देखना। फोन में देखोगे तो फोन में नहीं मिलेगा, सिर्फ बाइबल में मिलेगा आपको। यात्रा का गीत लिखा है। हाँ, यात्रा का गीत। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है वहां पे? What is that? A song of ascents. A song of ascents. यात्रा के गीत, हाँ चढ़ाई के गीत उसे कहा जाता है। तो देखो 120 में यात्रा के गीत लिखा होगा, 121 में देखो यात्रा के गीत लिखे होंगे, 122 में उसी प्रकार से, 123, 124 और 125, 126, 127, 128, 129, 130 और भी है शायद 31 में, 131 में है, 132 में है, 133 में है और 134 तक। हाँ 134 तक है ना, लिखा है ना वहां पे देखो 134, चैप्टर 134। नहीं आपने तो खोला नहीं है ना, 134 लिखा है। हाँ 120, चैप्टर 120 से चैप्टर 134 तक लिखा है वहां पे यात्रा के गीत। और कोई जगह में तो लिखा भी है कि किसने लिखा है। 133 में अगर आप देखोगे तो यात्रा के गीत किसने लिखा है? दाऊद ने। तो 131 में देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा है दाऊद ने। दाऊद। हाँ 127 को देखो किसने लिखा है? 127 को देखो किसने लिखा है? देखो लिखने वाला नाम लिखा है 127, 127 सोलोमन ने लिखा है ना। हाँ तो इस विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं
यात्रा के गीत, चराई के गीत हम कह सकते हैं। ये क्यों है? आप घर जाके 120 से लेकर 134 तक, चैप्टर 120 से लेकर 134 तक जरूर पढ़िएगा। जरूर पढ़िएगा। ये कौन सा गीत है? चराई के गीत या यात्रा के गीत क्यों लिखा गया है? इसका कारण ये है कि इस्राएली जो थे, यहूदी जो थे, वो मानते हैं कि उनका जो भवन जो है ऊंचे स्थान में है। जब भी भवन की ओर वो जाते हैं तो इस गीत को गाते गुनगुनाते हुए वो चलते हैं। चराई है ना, चराई ऊंचे स्थान पर है। जैसे आज यहाँ किमिन के जो चर्च है एक ऊंचे स्थान पर है। वहां से नीचे से चढ़कर आते 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 क्या है कि हम थक जाते हैं। तो उसी प्रकार से इस्राएली जो थे, यहूदी जो थे, वो अपने भवन की ओर जब बढ़ते हैं तो वो चराई चरते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है चराई के गीत, या तो यात्रा के गीत, या तो कहें सफर के गीत भी हम कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे यहूदियों का, इस्राएलियों का जो भवन था ऊंचे स्थान पर था, तो आज यहाँ किमिन में भी है ना सबसे ऊंचे स्थान पर है शायद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊंचा होने से भी क्या है, चढ़ते चढ़ते हम गुनगुनाते प्रभु की महिमा करते, प्रभु की प्रशंसा करते हुए हम चढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। उफ, पैर दुख गया, कमर दुख गया, इतना ऊंचा मैं क्यों बनाया हो, है ना। ऐसा करते करते तो शायद आशीष भी शायद ना मिले, है ना। बड़बड़ाते हुए, दोष देते हुए पास्टर को, एल्डर को, नीचे जमीन इतना है, यहाँ पे बनाना चाहिए था, ऊपर में क्यों बनाया हो, है ना। शिकायत करते करते हम चलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगा। लेकिन प्रभु के प्रशंसा करते हुए, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, गुनगुनाते हुए हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हुए गाएंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना आनंद की बात होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 120 को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मदद के लिए प्रार्थना। 121 में अगर देखोगे तो प्रभु हमारी रक्षा करने वाला, है ना। इस प्रकार से टॉपिक भी वहां पे लिखा हुआ है। कभी तो प्रभु के प्रार्थना करते हुए, कभी तो प्रभु के प्रशंसा करते हुए, कभी तो प्रभु के महिमा करते हुए वो प्रभु के भवन की ओर चलते हैं, प्रभु से मांगते हुए चलते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप विश्वास में मेहनती बनो। प्रभु के भवन में जाने के समय में हम मेहनत करेंगे, आलसी होकर, बुराई करते हुए प्रभु के भवन में जाने से क्या लाभ होगा। तो इसीलिए आज प्रभु के भवन में जाने के लिए क्या है, हमें मेहनती बनना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। तो आज हमारा विषय क्या है, मेहनत। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 को हम एक बार देखेंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 एक बार हम देखेंगे। चैप्टर 3 वर्स 17। पढ़ के सुना दीजिएगा, हिंदी में पढ़ के हम फिर से सुनेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 to 19 एक बार हम पढ़ेंगे। पढ़ो। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 से लेके 19, इसमें लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैं तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है और तू इसकी उपज
जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और 18 में लिखा है, और वो तेरे लिए खाके और कथारे उगाएगी और तू केक की उपहास खाएगा। 19 में लिखा है 19 में, और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। क्या कहा गया है यहाँ पे, है ना? तू मेहनत करेगा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दुख के साथ तू खाया करेगा, तू मेहनत करेगा, तुम्हारा पसीना बहेगा, है ना? बाइबल ये कहता है। ये श्राप आदम और हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया। क्यों दिया? और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वर्षा का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि तू उसे ना खा, उसकी तूने खाया है। तो यहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? तूने अपने पत्नी की बात को सुनी और जो फल नहीं खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, आज्ञा दिया था, सावधान किया था तुझे, तूने उस फल को खाया। इस कारण से तू मेहनत करेगा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाओगे, पसीना के साथ में तू रोटी खाओगे। ये परमेश्वर का क्या था? श्राप था। तो इंसान को क्या करना है? खाने के लिए, कमाने के लिए क्या करना है? मेहनत करना है। परंतु आज ऐसा बीमारी हमें लग चुका है ना? आज ऐसा बीमारी लग चुका है कि बिना पसीना बहाए हम कमाना चाहते हैं, बिना मेहनत करे हम कमाना चाहते हैं। लेकिन शायद यहां अरुणाचल में भी हो या देश के कोने कोने पर भी हो, आजकल आपने देखा होगा कि नेपाल में क्या चल रहा है कि नहीं? वहां के नेता का बेटा बेटी विदेशों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्यों होता है? करप्शन, है ना? उसके जो कारण होगा करप्शन। मेहनत करके पसीना बहाकर कमाना वो अलग बात है, परंतु आज का जो हमारा सबसे बीमारी क्या हो गया कि हम मेहनत ना करें, परंतु हम बहुत सारा कमाएं, धन बटोरे। ये आजकल का इंसान शायद यहां पे भी हो सकता है कि नहीं? बिना कमाए हम बहुत सारा धन बटोरना चाहते हैं, बिना पसीना बहाए हम बहुत ही मेहनत, बहुत ही पैसा कमाना चाहते हैं, और उस कारण हम क्या कर बैठते हैं? करप्शन करते हैं। थोड़ा सा लिखकर, थोड़ा सा कुछ करके हम कमाना चाहते हैं। तो ये दुनिया का या आजकल का हमारा सबसे बड़ा बीमारी ये हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी है। परमेश्वर क्या कहता है? तू दुख उठाएगा, तू कष्ट करेगा, तू मेहनत करेगा और तू कमाएगा और तू खाएगा, परंतु मेहनत नहीं करके हम खाने का कोशिश कर रहे हैं। छोटे हो बड़े हो, सरकारी काम में बड़े हो छोटे हो, है ना? पॉलिटिक्स में उसी प्रकार से ये सब चल रहा है कि बिना मेहनत करे, बिना पसीना बहाए हम बहुत सारा धन। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, वो सुकून की नींद सोता है, सुकून का भोजन वो खाता है। परंतु जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा धन दौलत बटोरता है, वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। तो इसलिए आज मैं ये बताना चाहता हूं कि इस संसार में आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है। आप मेहनत करोगे, अपने बलबूते पर आप मेहनत करके बड़ा बनते हो तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। परंतु आजकल क्या है?
अचानक से बड़ा गाड़ी खरीद लिया। कहां से खरीदा हो, है ना? अचानक से बड़ा बिल्डिंग बना लिया। कहां से खरीदा हो, कहां से बनाया? उसका सैलरी तो इतना नहीं है, उसका कमाई तो इतना नहीं है ना? आजकल बिना मेहनत करे बड़ा गाड़ी, बिना मेहनत करे बड़ा घर हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? गलत रास्ता चुनते हैं। कोई तो 2 नंबर काम करके, कोई तो स्मगलिंग करके, कोई तो ड्रग्स नशा बेचकर। तो उससे क्या होता है? उस व्यक्ति का तो अच्छा हो या भलाई हो, परंतु दूसरों के लिए वो नुकसान होता है। दूसरों के लिए वो दुख का कारण बनता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हम पेंटिकोस्टल कलीसिया के लोग तो मेहनत करेंगे और जितना मेहनत का फल मिलता है उसी से हम चलेंगे। परंतु हम देखते हैं दूसरे लोगों को, हाँ, उम्मीद से ज्यादा बड़े, उम्मीद से ज्यादा अच्छे घर, मकान, पैसा, संपत्ति जो बनाते हैं, उनको देखकर हमें भी क्या होता है कि इच्छा होता है, काश हम भी वैसा बने, काश हम भी उस प्रकार का बने। तो इसलिए आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करो और मेहनत से आपको जितना मिलता है उसमें आप संतुष्ट हो, हम संतुष्ट रहे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आपने, हमने कुछ लेकर नहीं आए हैं। एक दिन हमको तो इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और आज आप और हम प्रभु के विश्वास में अटल और मजबूत रहेंगे तो हम उस दुनिया में पहुंचेंगे जहां पे ना गरीब अमीर रहेंगे, ना वहां पे दुख रहेंगे, ना वहां पे बीमारी रहेंगे, ना वहां पे मृत्यु रहेंगे। उस जगह पर हम जाएंगे। लेकिन इस संसार में हम लालची बने, हम लालच करें और बुरी काम करें तो हम कहां पे जाएंगे? नरक पर जाएंगे। हाँ, कल रात को हमने गीत गाए थे, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। हम तो नया स्वर्ग में नए गीत गाएंगे, परंतु जो मन नहीं फिराए हुए लोग हैं वो नरक पर जलते रहेंगे। हमने ये गीत गाए थे। तो यहां पे 2 नंबर काम करके, गलत काम करते हुए अच्छा जीवन जीकर वहां पे नरक पर जलते रहे, वो क्या चाहते हैं आप? नहीं ना। आज हम यहां पे मेहनती बनेंगे, मेहनत करेंगे और उसी प्रकार से इस दुनिया को छोड़ने के बाद, इस दुनिया को अलविदा करने के बाद में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। शांति ही शांति मेरे बाप के घर, डर नहीं है मेरे बाप के घर, आनंद ही आनंद मेरे बाप के घर। तो उस जगह में आप और हम जाएंगे। तो उस कारण आज संसार के जो रीति है, रिवाज है, उसमें हम नहीं चले। हम मेहनत करेंगे और मेहनती बनेंगे और हम ये दिखाएंगे कि हम पेंटिकोस्टल मंडली के हैं। उसी प्रकार से जीवन के विषय में हमने कहा, उसी प्रकार से आज आनंद जीवन के विषय में आपके बीच में कुछ और कहना चाहता हूं। और यहां पे हम पढ़ेंगे फिलिपियों के किताब, उसके 2 अध्याय और उसके 12 पद को हम एक बार पढ़ेंगे, सुनेंगे। मामा एक बार आप हिंदी में पढ़ के सुना दीजिए। फिलिपियों का किताब, उसके 2 अध्याय और उसके 12 पद को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। यहां पे वचन क्या कहता है? हाँ, वर्स 12 में क्या कहता है? फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 12। चैप्टर 2 वर्स 12। हाँ, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 12 इसमें लिखा है, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मांगते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विश्वास विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और खांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूर्ण करते जाओ। अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ।
यहां पे पौलुस क्या कहता है, मैं जब तुम्हारे सामने हूं तू अच्छा करता है, परंतु मैं ना रहूं तब भी तू अच्छा करते रहो और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, अपने उद्धार के कार्य को तुम कमाओ, ऐसा कहता है। तो आज विश्वास में हम विश्वासी तो बन चुके हैं, लेकिन इतने सारे विश्वासी हैं जो आराम से बिना पसीना बहाए, बिना कष्ट करे, बिना मेहनत करे, है मैं तो उद्धार पा लूंगा, मुझे तो उद्धार मिल जाएगा, ऐसा कहने वाले लोग आजकल बहुत हैं। चर्च जाने का जरूरत नहीं है, चर्च जाने का जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, आराधना करने का जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे भी मैं स्वर्ग तो जरूर जाऊंगा, ऐसा कहने वाले शायद आपने विश्वासी बहुत देखे होंगे, है कि नहीं? देखे होंगे या सुने होंगे। क्या आपका बाप का है या हमारे खानदान का है स्वर्ग जो हम ऐसे ही चले जाएंगे? स्वर्ग में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको हमको मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेहनत बिना विश्वास कुछ भी नहीं है और विश्वास बिना मेहनत भी कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। उद्धार का कार्य, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पास्टर का मेहनत की वजह से मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, अपने एल्डर के मेहनत के वजह से मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। आपके मेहनत हमारे खुद के मेहनत के वजह से, आपके विश्वास और हमारे खुद के विश्वास के वजह से, कारण से हम परमेश्वर के राज्य पहुंचेंगे। इसलिए अपना उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या कार्य हमें करना है? कार्य ये हमें करना है, काम ये हमें करना है कि हमें प्रभु की आराधना करना है, हमें प्रभु की प्रशंसा करना है, हमें प्रभु के जय जयकार करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु के भवन तक पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। बिना प्रभु के भवन पहुंच के जो मैं तो स्वर्ग जरूर जाऊंगा जो कहता है, उसका बात कभी भी हमें नहीं सुनना है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, जैसे बहुत लोग करते हैं कि तुम इकट्ठा होना नहीं छोड़ो। इकट्ठा होना मतलब इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करना, इकट्ठा होकर प्रभु की प्रशंसा करना। तो आज ये भवन बना है, यह भवन किस लिए बना है? कि हम इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा कर सके, इकट्ठा होकर हम प्रभु की प्रशंसा कर सके, इकट्ठा होकर हम प्रभु से विनती प्रार्थना कर सके, इकट्ठा होकर हम प्रभु से, है ना, भोजन पा सके और हम तृप्त हो सके। अपने अंत की ओर मैं जाऊंगा, जरा समय और नहीं लूंगा। बाइबल में हमने देखा नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 7, 9 ऐसा हम पढ़ेंगे, देखेंगे। नंबर्स गिनती तो से आप पढ़ेंगे, हम सुनेंगे गिनती उसके 11 अध्याय और उसके 7 और 9 को एक बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। 7 और 9, 7 और 9 एक बार पढ़ के सुनेंगे क्या लिखा है। Numbers chapter 11 verse 7 and 9. Numbers verse 7, 8 or 9. 7 and 9. 7 and 9. गिनती 11, 7, 8 और 9। यहाँ पर लिखा है मन्ना तो दुनिया के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। फिर हाथ में लिखा है 9 में पढ़ दो सीधा डायरेक्ट।
9 में लिखा है, और रात को जब चावड़ी में ओस पलटी थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। हाँ, वह तक। हाँ, पहले तो फिलहाल तो क्या मिलता था, क्या गिरता था, क्या खाता था। इस्राएली के जो लोग थे मिस्र देश से जब निकले थे तो परमेश्वर ने भोजन के लिए क्या दिया था? अभी जो हमने पढ़ा क्या है? मन्ना। मन्ना वो मिलता था, परंतु केवल मन्ना खाकर उनके पेट नहीं भरा, वो और दूसरा चीज का ख्वाहिश करने लगा। आप सिस्टर पढ़ोगे 32 चैप्टर 11:32 एक बार पढ़ दो। सुनते हैं क्या लिखा है वहां पे। वही उसी चैप्टर का वर्स 32, चैप्टर 11 वर्स 32। गिनती में 11 का 32। बैटरी नहीं है, बैटरी खत्म। हाँ, आराम से आप लोग भी देखिएगा जिसके पास में बाइबल है। 32 बस 32 पढ़ना है। और लोग उठकर दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 हमोर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छतवनी के चारों ओर फैला दिया। हाँ, वहां तक। हाँ, ठीक है। मैं पूछता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बटोरे थे उन लोगों ने? क्या नाम लिखा है? क्या क्या बटोरे थे? बटेरो। बटेरो। इंग्लिश में क्या लिखा है? कोयल लिखा है कि क्या लिखा है? क्वाइल। क्वाइल। आसान भाषा में हम कहते हैं ना, मीट कहेंगे उसको, है ना, एक पंछी, एक चिड़िया। मना और बटेरो कोयल को परमेश्वर ने खाने के लिए दिया। हाँ, मना उसको मान लो कि रोटी, और कोयल बटेरो वो एक मीट है। तो इस्राएलियों को क्या मिलता था? भोजन क्या मिलता था? कितना मिलता है? कितना मिलता है? दो भोजन मिलता है। हाँ, 2 भोजन मिलता है। इसका मेरा एक उद्देश्य है। चलो मैं आप लोगों को कहानी और फिर से पहले राजाओं का किताब को खोलकर दिखाना चाहता हूं। पहले राजाओं का किताब उसकी 17 किंग्स, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 और उसके वर्स 6 को हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है यहाँ पे। ब्रदर रतिंग आप पढ़ के सुनाओ, इंग्लिश में पढ़ के सुनते हैं। आप देखना, जिसके पास में बाइबल है वो देखना। चैप्टर 17 वर्स 6। ओके, फर्स्ट किंग। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 6। अब ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश पर यह लिखा गया है कि the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. हाँ, उसको क्या मिलता था? ब्रेड एंड मीट, रोटी और मीट मिलता था, है ना। एलाइजा को क्रो, शायद इंग्लिश में क्या लिखा है? क्रो तो नहीं है, क्या बोलता है उसको? कोयल, रेवेंस। अच्छा, क्रो की तरह, है ना, काले कौवे की तरह है। तो वो एलाइजा को खाने के लिए क्या देता था? मीट और ब्रेड। हाँ, मैं सब पढ़ के सुनाऊंगा तो शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 19 वर्स 7 को आप एक बार फिर से देखो। चैप्टर 19 वर्स 7 में फिर से यहां पे लिखा है, स्वर्गदूत उनके पास में आता है और वो कहता है कि तू उठो और खाओ और तू आगे बढ़ो। यहां पे हमने देखा एलाइजा जो है वो कमजोर पड़ गया। कमजोर किस लिए पड़ गया? वो कमजोर इसलिए पड़ गया कि वो एक औरत से डरने लगा। औरत से डरने लगा और वो छुप गया एक पेड़ के छांव पर और उसने प्रार्थना किया, प्रभु अब बस मैं चल नहीं पाऊंगा,
मेरा प्राण यहीं पर ले लो, बस मेरे लिए ये काफी है। प्रभु से उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा प्राण ले लो, परंतु वहां पे स्वर्गदूत उसको आकर उठाता है, खाओ और पियो और तू आगे बढ़ो। अभी तो माइक भी आ गया, एक बार फिर से पढ़ के सुना दो ना, चैप्टर 19 वर्स 7 और 8 को एक बार पढ़ के सुनते हैं। Verse King, chapter 19, 7 and 8। verse 7 8। यहाँ पर लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आग में लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमेन, हालेलुया। स्वर्गदूत आकर क्या कहता है कि तू उठो और खाओ और पियो, क्योंकि तू बहुत दूर का सफर, तुझे बहुत दूर का सफर करना है। और वो उठा और उसने खाया और पिया। केवल खाया नहीं, उसने पिया भी। केवल पिया नहीं, उसने खाया भी। मेरे प्रियो, आज ये बात मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जब भी हम भवन में आता है, केवल वचन सुनकर जाने से भोजन सिर्फ एक तरफा होता है। समझ में आया? सिर्फ वचन सुनकर हम जाने से क्या होता है, सिर्फ एक भोजन हमें मिलता है। चर्च में आने से आत्मिक भोजन भी हमें खाना बहुत जरूरी है। तो आत्मिक भोजन आपको कौन खिलाएगा? हमारे पास्टर खिलाएंगे। केवल वचन आपको खिला रहा है तो वो अधूरा है। खाना भी है, पीना भी है, रोटी भी चाहिए, मीट भी चाहिए। भोजन 2 प्रकार का होना जरूरी है। सिर्फ वचन सुनकर जाते हो, इसका मतलब सिर्फ आपने खाया है, आपने पिया नहीं। सिर्फ आपको रोटी मिला है, आपको मांसो नहीं मिला। या तो यूं कह सकते हैं, सिर्फ मांसो मिला है, रोटी तो नहीं मिला। आज मैं अपने पास्टरों से भी कहना किया था, एलिजा को उस पंछी ने क्या खिलाया था? मीट और रोटी खिलाया था। उस स्वर्गदूत ने एलिजा को क्या खिलाया और पिलाया? उसने रोटी और पानी पिलाया, क्योंकि उसको बहुत लंबा सफर करना है। मेरे प्रियो, आज वचन हम नहीं सुनेंगे, आत्मा में हम नहीं बढ़ेंगे, तो हमें बहुत दूर सफर करना है। हम अपने सफर को कैसा पूरा कर सकेंगे? अपने सफर को पूरा करने के लिए हमें खाना भी है, पीना भी है, तो आपको खिलाना भी है, आपको पिलाना भी है। तो आज उस खाने के लिए, पीने के लिए आपको मेहनत करना होगा। बच्चा थोड़ी ना हो कि आ करो बोल के आपके मुंह में घुसाएगा, है ना? बच्चों को तो हम खिलाते हैं ना चम्मच से, आ करो और मुंह में डालते हैं, जबरदस्ती भी डालते हैं। लेकिन बड़ा होने के बाद में तो हमें खुद निवाला खाना पड़ता है। ये क्या करना होगा? आपको मेहनत करना होगा। अपने विश्वास के कार्य को पूरा करते हुए आपको अपना जीवन को क्या है, हासिल करना होगा। आनंद जीवन को आपको हासिल करना होगा। परंतु ये बीमारी जो है चढ़ गया है। बहुत लोग चर्च जाना छोड़ चुके हैं। बहुत लोग YouTube देख कर, सुन कर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, ऐसे भी चल जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। Tihian Arunachal Kimin Biakin Sakthar Honna program su atang pui kanon tisaba Isuan tuna hian inkhom tekan banga dahi uri thuak mai Isuan helai muna hian ni zana kan tiang khan ti lai khem patu te nei rongan bola ti lai hian jingcho chuncho te pokan ti thang kan ei le don ani Chuan tunatan chuan khati zong khan ri thot sela video dot le ya an khom revival program te korunda sunzom le donia khirtu te atop thlengam lo thlir sakabangin chunga lom thu kan soyani